Organization, Standard 8, Chapter number 4. This chapter belongs to second terminal examinations. The word urbanization comes from the word urban, which means relating to or characteristic of these towns and cities are urban settlements. An urban area, built up area, densely covered by buildings and has a high population density. In other words, it has many buildings located close to each other and a large number of people living in a relatively small area. It is different from a rural area, which is countryside or farmland located outside towns and cities. A rural area has widely spaced settlements and amid large tracts of open land. Urbanization refers to the formation of towns and cities and other growth in size. Its people living in cities and towns mainly due to the shifting of population from rural to urban areas. Next thing, it is very important thing कि अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. इसका बैकग्राउंड है कि द अर्लीस्ट परमानेंट human settlements were most likely small villages consisting of only a few huts. They come up where there was a good source of water and fertile land, such as Indus Valley civilization. Suppose that Mesopotamian civilizations, Egypt civilization. Egypt also developed civilization, and it lies beside the Nile River. Nile is the longest river in the world, and Amazon is the largest river in the world. Amazon lies in Brazil. Now, we can say easily Mesopotamia civilization, Mohenjo-daro, Harappa civilizations, and Egypt civilizations. Athens in Greece now lies in Syria, Varanasi in India, Rome in Italy. They all are old civilizations, and its concept is very old. Causes of urbanization. First cause, it's natural increase. Natural increase means by natural increase in population where birth exceeds deaths. Generally, urban areas have better medical facilities than rural areas. Hence, there are fewer deaths. And rural-urban migration mainly increase in urban populations in the migration of people from rural area to urban area. People migrate from rural to urban area due to employment opportunities. And town and cities are urban settlements. Rural area has widely spaced settlements amid large tracts of open land, and it has low population density, and villages are rural settlements. Rural settlements are much smaller than urban settlements. Urbanization refers to the formation of towns and cities and their growth and size. Now we can say half of the world's people, like 50 or 56%, people live in urban areas. The populous areas, Shanghai, Beijing, Tianjin in China, and Delhi, Mumbai in India, Karachi, Istanbul, Turkey, Tokyo, Lagos, they all are the populous cities in the world. Now, we also discuss about the employment opportunities. More jobs and business opportunities are available in these areas because of the development of industries, trade, and commerce. During the industrial revolutions, which began in Europe in the 18th century, actually 1888, it is a very crucial time to the world. I can say that इंग्लैंड के पास सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के लिए ही था, और जितने भी कंट्री थे यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, किसी के पास इंडस्ट्री की बहुत ही कमी थी, जिस कारण से मैक्सिमम लोग इंग्लैंड से ही मंगवाते थे सामान.
सब एक टोटल कंट्रीज एक्सेप्ट इंग्लैंड सब वहीं से इंपोर्ट करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि एक समय 1888 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिस कारण से हर कंट्री अपना अपना इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू कर दिया। There was large scale urbanization due to rural urban migration, and this happened in all the European countries that became economically developed during this time, and also in North America. At present, the faster rate of rural urban migration is seen in countries that are economically less developed but are gradually improving their economy. We also find these countries and getting urbanized rapidly, and there are many such countries such as Africa, very backward area, African Chad region, Nigeria region, Zimbabwe region, but we find South Africa is more developed than the other countries of African country. Now, urban areas generally have a better supply of goods, better education facilities, better sanitation, housing better, power supply, better medical facilities, better transport facilities, and better educational system. That's why these facilities, social and religious freedom than people have in rural areas migrated. Rural urban areas ट्रांसफॉर्म्स तभी होता है जब इन कोर्स ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन रिसोर्स मीन्स संसाधन। रिसोर्सेज आर नॉट बिकम, रिसोर्स होते नहीं हैं, रिसोर्स बनते हैं आदमी विशेष से। सपोज दैट आई हैव ए पेन, आई नो दैट हाउ टू राइट ABCD, हाउ टू राइट कॉकर, सो पेन इज माई रिसोर्स. But a person who doesn't know ABC, he doesn't write, pen is not a resource of that person's. Now, the South African city of Johannesburg, I think Johannesburg is the first city region in all the countries of Africa. बिल्कुल एक developed city है, where gold was found, and the Indian city Jamshedpur are also well developed for steel plant area. Now, impact of urbanization, इसका impact ये है कि ये planned manner में होता है urbanization, और एक planned manner में सबसे पहले promotes industrialization को करता है, development technology को करता है, opportunity for many people को job opportunity मिलता है. Next है कि improvement of transport facility, communication facility, water supply, sanitation, others, etc. Now, urbanization improves the general quality. एक चीज और भी हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव अप्रोच भी आते हैं. सबसे पहले तो नेगेटिव अप्रोच में आता है कि यहाँ पर a large number of houses have to be built in a relatively small space. That's why we find this area becomes congested, and most people have to live in small apartments in shared houses. Houses rent is very high in urban areas, and so is the price of land. Many people who cannot afford housing live in illegal dwellings such as cities. Now, satellite city. A satellite city is a city that is located close to but outside the limits of a larger city and is connected to the larger city by an efficient public transport system. For example, London, several satellite cities like Brentford, Crawley, and Chelmsford. Now, I Swiss Queensland is also a satellite city. Brisbane, Australia, and Kinchester, Guelph to Toronto, Canada. In India, we find Mumbai, HITEC city near Hyderabad,
न्यू टाउन राजरहाट नियर कलकत्ता and Chandigarh. We can easily say it has mainly residential buildings, schools, offices, banks, shops. It has few or no factories. It is established as a city distinct from its neighboring. Now we can say about the smart city. A smart city is a concept of very also old. Barcelona is the first smart city now, and we find the Indian government has also launched the smart cities mission, under which some cities have been chosen to the development into a smart city. Among there is Bhubaneswar in Odisha, Pune, Maharashtra, Jaipur, Rajasthan, Surat and Ahmedabad, Gujarat, Kochi, Kerala. But it has a also other factor. We find its factor is like the concept of smart cities and urban development vision to integrate multiple information and communication technology, ICT. ICT means information communication technology solution in secure fashion to manage cities assets. The goal of building quality of life. ICT interact directly to the government agencies. Government monitor. Firstly, you have to know that स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया. इसमें 8 की का एस्पेक्ट दिया गया, बुक्स में नहीं है, बट इसके 8 की जान लेना जरूरी है. फर्स्ट है स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट हेल्थ केयर एंड लास्ट स्मार्ट सिटीजन. इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करना, एजुकेशन स्किल को डेवलप करना, हेल्थ इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या आता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट गवर्नमेंट एजेंसी से पीपल को डायरेक्ट टैग करना और उसको प्रैक्टिस में लाना, हेल्थ इकोनॉमिक ई गवर्नेंस को डेवलप करना, चेंजिंग सर्कमस्टांसेज, लीडिंग स्मार्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. आई थिंक बार्सिलोना, एम्स्टर्डम ये सब फर्स्ट है. ब्रासिलिया ब्राजील का ही एक डेवलप सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, ये भी स्मार्ट सिटी में आते हैं. ब्राजील वैसे एक ब्राजील नाम का वहाँ पर एक ट्री था, जिस ट्री के नाम पर वहाँ उस कैपिटल का नाम भी रखा गया. दिस फिगर, ये फिगर आपके बुक में नहीं है, बट इस फिगर के बारे में एक चीज़ कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. 1960 में 1 बिलियन पीपल थे, 2 बिलियन पीपल 1970 में, 2.5 बिलियन पीपल 1980 में, 1990 में, इस तरीके से ये चला गया. नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशंस में ये कैसे डाउनफॉल होते चला गया है. रेज किया, फिर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद रेज किया, रेज करते 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 फिर ये डाउनफॉल में चला गया. लेकिन पिछले लगभग 50 ईयर्स के बीच में ये रेज कर गया. ये पूरे वर्ल्ड का पीपल का किस तरीके से माइग्रेशन किया है, क्योंकि 54% पूरे अर्बन एरिया में 1916 में पॉपुलेशन था, 55 1918 में, अभी 1919 में ये 56% तक अर्बन पॉपुलेशन पहुंच गया है, जबकि 4 बिलियन पीपल अभी अर्बन एरिया में रह रहे हैं. अभी पूरे वर्ल्ड में कम से कम 4000 सिटीज है जो अभी आपके परमानेंट इंडिया में है. 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके इंडिया में है, और बिगेस्ट जो सिटी में आते हैं वो गुरुग्राम है, चाइना है, रियो डी जेनेरो है, ये ब्राज़ील में पड़ता है, तंजानिया है, मनीला है, लागोस है, कोलकाता इंडिया में, इस्तांबुल टर्की में, इस तरीके से पड़ता है. नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि ये CBD का मतलब हो गया कि मास्टर प्लान. जब किसी भी कंट्री का करते हैं मास्टर प्लान जब किसी भी कंट्री का करते हैं
तो उसमें हम देखते हैं कि सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर को देखें, किसी भी टाउन को देखें, बड़े बड़े शहर को, कि एक सीबीडी होता है जो सेंटर में होता है, वहाँ से कई एक रोड निकले हुए होते हैं। सीबीडी का काम है कि यहाँ पर सभी प्रकार के वस्तु मिलना चाहिए, ग्रीन ग्रोसर, एजुकेशनल सेंटर, बुक्स, कॉपीज, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, fertilizers for farmers, green grocers, etc., etc., all things. Then we find this system. इस एरिया में, ये सब एरिया में रेजिडेंशियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये सब रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन ये रिंग सिस्टम, चूंकि मास्टर प्लान रिंग सिस्टम से भी होता है, मास्टर प्लान जबकि होता है रिंग सिस्टम के अलावे भी दूसरा प्लान भी होता है जो रिवर एरिया में है। बट आई हैव टू से स्क्वायर एरिया, दिस स्क्वायर एरिया, दिस स्क्वायर एरिया, दिस एक ग्रीन ग्रोसर के लिए डेवलप किया गया। अगर आप अपने शहर को भी देखें तो एक ऐसा भी शहर होता है जिससे सपोज दैट कल्याणी चौक, तो यहाँ से 5 शहर निकला है, 5 रोड्स, 5 रोड्स निकले हैं। और ये 5 रोड्स में क्या है, ये सभी में सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और ये सीबीडी है, सीबीडी में सारा चीज़ मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी के लोग भी काम करते हैं जिनका रेसिडेंस इस एरिया में रखा गया है, इस एरिया में, इस एरिया में। फिर इस एरिया में एजुकेशनल सेंटर को, इस एरिया में गवर्नमेंट एजेंसीज के अदर स्टाफ्स को, इस तरीके से सभी स्टाफ को ऐसे ऐसे एरिया में रखा गया, और रिंग सिस्टम से आने जाने का, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को, रोड्स और रेलवेज को, मेट्रो को डेवलप किया गया ये रिंग सिस्टम के माध्यम से। अगर कोई जैसे मिसौरी रिवर है, यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में पेंसिल्वानिया, ओक्लाहोमा, ये सब एरिया अगर देखें तो वी फाइंड यूएसए। अब यूएस में देखिए न्यूयॉर्क सिटी को, पेंसिल्वेनिया को, डिट्रॉयट को, ओक्लाहोमा को, फ्लोरिडा, ये सब एरिया जो है वेल डेवलप एरिया है। ये लेक्स हैं, 5 लेक्स, टेक्सास का एरिया, लुसियाना का एरिया, तो इन सब एरिया में रिवर्स के कारण रिंग सिस्टम नहीं बन सकते हैं, जिस कारण से यहाँ पर फ्लाइंग ओवर दे करके इस सिटी को डेवलप किया गया है, अर्बन में चेंज किया गया है। वाशिंगटन डीसी के साथ में हो गया। यहाँ पर कैलिफोर्निया है, सिलिकॉन वैली इस जगह पर हुआ, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली मीन्स गूगल, फेसबुक सबका ऑफिस इसी जगह, और इस एरिया में बिजनेस को डेवलप किया गया है। ये खास रूप से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया। ये डिजाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स लोगों ने किया है। मैंने आपको रिंग सिस्टम में बतलाया, इसके अलावा ये डेवलपमेंट ऑफ पीपल, अर्बनाइजेशन का मैंने बतलाया आपको। मैंने बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर दिया, कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन डिस्कस किया, नेचुरल इंक्रीज जो आपके बुक में है, जो भी एक बुक में दिया हुआ है सबको मैंने उसका चर्चा कर दिया। रूरल अर्बन माइग्रेशन का भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्यूनिटीज, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशंस, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो भी बतलाया कि किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अनसेटिजाइजेशन रहता है, कंडीशंस बहुत ख़राब रहते हैं उस जगह पर, स्लम्स एरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स डेवलप करते हैं उस एरिया में, पोल्यूशंस ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है, सब नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी है कि सभी प्रकार के वस्तु वहाँ मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन की अच्छी सुविधा सिस्टम रहती है, हेल्थ की अच्छी सुविधा रहती है, एजुकेशनल सिस्टम डेवलप रहता है, इन सब का प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं, सैनिटेशन कम्प्लीटली रहता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। सेटेलाइट सिटी के बारे में आपको बता दें कि आउट ऑफ द सिटी रीजन्स इसको डेवलप किया जाता है, और जैसे कोलकाता में किया गया, HITC में सिटी में। और नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कि प्लांट सिटी में रेजिडेंशियल एरिया है, और यह एरिया कम्युनिकेट किया गया है सैटेलाइट एरिया से। मेन इसका उद्देश्य यही है कि सैटेलाइट एरिया से मेन जो अर्बन एरिया है, इस अर्बन एरिया से सैटेलाइट एरिया को, दूर दराज के एरिया को कवर करना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप करना और उसको कवर कर देना। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर फिनिश्ड। ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया,
एंड इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये डेवलप सिटी में आता है ये चारों। नेक्स्ट है कि 192 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में है, सिटीज 4460 पूरे वर्ल्ड में है। हैव यू एनी प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के दरमियान कोई भी स्टूडेंट इजीली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है इजीली, आराम से। दिस इज माय नंबर, आप किसी भी टाइम आप इस पर बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम। 9110105121, दिस इज माई सेल नंबर। और किसी भी टाइम इस चैप्टर से संबंधित या किसी कुछ टाइम से संबंधित प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं।